Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. In last video we started the concept of FIR and we did meaning, its definition, purpose and some contents that we include in FIR, right? FIR is the very important concept of the Code of Criminal Procedure Act. As I told you, FIR stands for First Information Report. Today we are going to discuss some important questions that are related to FIR. ये आपसे इंटरव्यू में, पीटी में या कभी भी पूछे जा सकते हैं. You should know about each and everything in detail about FIR. FIR is given under section 154 of CRPC. So let's discuss. First question that arises is, why is the FIR called an FIR? Why it's called an FIR? देखिए, it is the first information. As I told you, FIR stands for First Information Report. Okay, so it's the very first information that is received by police after the commission of the offense. On the basis of this, it is converted into report. पहले आपको information मिलती है जिस related offense हुआ है, फिर आप उस information के basis पे एक report ready करते हो, है ना? तो उस report को ready करना information से is called FIR, that is First Information Report, right? अब next question जो rise होता है वो है, can a cryptic information be called an FIR? Means cryptic is like full information. क्या आप उसको FIR कह सकते हैं? आंसर इज नो. क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कभी भी FIR नहीं होती है. क्रिप्टिक का मतलब होता है बच्चे, आई राइट, क्रिप्टिक मीन्स एम्बिगियस, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस या समथिंग, सम इंफॉर्मेशन यूजिंग कोड्स. ओके, सो कैन इट बी कॉल्ड एन FIR व्हेन इट इज नॉट साइंड एंड रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग? ना राइटिंग में हो ना साइन में हो. कैन इट बी FIR व्हेन बीइंग गिवन बाय विटनेस या विक्टिम? देखिए, intention of the informant is set the objective mechanism. okay, intention क्या है informant की? informant होता है information देने वाला basically. so उसकी intention ही justice mechanism को सबको set करती है into motion. so name not revealed nor ready to sign. ओके, ना तो वो नाम देने के लिए रेडी है विक्टिम, ना साइन करने के लिए रेडी है. पुलिस ऑफिसर विल रिकॉर्ड इन जनरल डायरी. ही विल इन्वेस्टिगेट एंड लुक फॉर एन informant and take statement. It will then be considered as FIR, the squad investigation and a part taken to the police station. If name given, then the police officer will conduct investigation and take the sign simultaneously, है ना? साइन भी ले लेते हैं. अगर if no witness found, then record FIR and then investigation of the offense. So if the evidence found, अगर कोई एविडेंस उस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन पर मिल जाता है, पुलिस ऑफिसर विल हिमसेल्फ बिकम एन इंफॉर्मेंट अगेंस्ट द एनोनिमस पर्सन, एनोनिमस एक्यूज्ड पर्सन, बट इट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू. द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इज देन कॉरोबोरेटेड इन द ट्रायल. देयरफॉर दे वुड वांट अ विटनेस, इसलिए विटनेस चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन FIR हो सकती है. वेंट टू स्पॉट, आपको एक इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक मिली है, एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है. देन यू वेंट टू स्पॉट एंड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस. अब जिस विटनेस से आपने स्टेटमेंट ली, ट्रायल ऑफ विटनेस, ठीक है, वो अपीयर होता है एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस. अब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन पार्टी विल टेक आउट द FIR एंड से दैट इट इज ट्रू. अब डिफेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाता है. डिफेंस ऑब्जेक्ट्स अंडर सेक्शन 162 एज इट वॉज मेड ड्यूरिंग द कोर्स एंड इन्वेस्टिगेशन एंड देयरफॉर नो एविडेंस. इफ इट्स प्रूव्ड दैट कन्वर्सेशन, जो कॉन्वर्सेशन थी वो क्रिप्टिक थी, देन द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज नॉट FIR. अगर आपने इसको क्रिप्टिक प्रूव कर दिया, इट्स नॉट FIR. बट द वन मेड ऑन द स्पॉट, अगर वो स्पॉट पर बनी हुई थी, एकदम देखा है, तब वो FIR होगी. So as a cryptic call means one having no specific name and full details, doesn't have evidentiary value, so it won't be deemed to be an evidence or corroboration, right? So CRPC के अंडर 162 के अंदर आप उसको क्वैश कर सकते हैं,
right bache? So what's the conclusion of cryptic information is that a cryptic information is an information which is vague and obscure. The intention of the informant is not to lodge the FIR as such and get the investigation started. Rather उनकी intention क्या होती है? It's merely to inform the police ऑफिसर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. यहाँ पर जो पर्सन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवर है, ना वो अपना नाम बताना चाहता है ना साइन करना चाहता है, और उसका मोटिव भी एक FIR देना नहीं है. ही जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पुलिस को सिर्फ ये भनक लग जाए, ये आइडिया मिल जाए कि ऑफेंस हुआ है, राइट? वो सिर्फ ऑफेंस बताने चाहता है. द इंफॉर्मेंट डजंट रिवील हिज आइडेंटिटी एंड नोट गिव द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट एंड ऑल्सो ही इज अनविलिंग टू साइन द डॉक्यूमेंट. अपॉन सच एन इंफॉर्मेशन द फॉर्मेलिटी ऑफ FIR कैन नॉट बी कंडक्टेड. आप FIR की कोई फॉर्मेलिटी नहीं कंडक्ट कर सकते हो. रादर द पुलिस ऑफिसर, सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास एक ही रास्ता है, टू गो ऑन द स्पॉट to examine whether the information is correct or not. Such an information doesn't per se make a police officer start the investigation. Rather, police officer subsequently will have to find a witness. उनको उस information से related खुद एक witness ढूंढना पड़ेगा who will give the statement, and if it is the statement which will be converted into an FIR and thereafter investigation will start. समझ में आया प्रोसेस बच्चे? अगर कहीं से टेलीफोनिकली कोई इंफॉर्मेशन मिली है, आपको वहाँ ऑन द स्पॉट गए हो, आप स्पॉट पे जाके आपने इंफॉर्मेशन चेक की, वहाँ पर जाकर आप पहले किसी विटनेस को देखोगे, अब उस विटनेस से इंफॉर्मेशन दोबारा से लोगे, फिर उस इंफॉर्मेशन की आप FIR बनाओगे. Okay, otherwise just on the basis of cryptic information you cannot make an FIR. Since first cryptic information is not an FIR, rather the second statement is an FIR. जो second statement होगी will not be said to be a statement made to the police in the course of investigation. Hence, it will not hit by section 162 of CRPC and can be used to corroborate the testimony of the witness. जो second statement दी गई है उसको आप witness की testimony corroborate करने के लिए भी use कर सकते हो. ओके. However, if the first telephonic information was not cryptic, अगर वो cryptic नहीं मिलती है, rather was detailed with the identity, वो डिटेल देता है पूरा पर्सन, अपना नाम भी बताता है, इंसिडेंट का एक एक साइन देता है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है. सो देन दैट वेरी स्टेटमेंट विल बी टेकन एज FIR एंड इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट. वहीं से ही इन्वेस्टिगेशन आप वहीं से स्टार्ट कर दोगे. ओके. बट यहाँ पर FIR के बाद जब ये लिखी जाएगी फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. समझ में आ रहा है बच्चे डिफरेंस आपको? देन therefore any statement made to the police subsequent thereto will hit by section 162 of CRPC. By chance SMS sent, police officer calls for statement, the statement would be called an FIR. उसके बाद उस स्टेटमेंट को आप FIR के लिए यूज कर सकते हो. राइट बच्चे? सो दीज आर द important questions that are asked related to FIR. Next question that arises is investigation depend upon lodging of FIR? क्या इन्वेस्टिगेशन FIR के ऊपर ही डिपेंड करती है? जब तक FIR लॉन्च नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं होगी. इसका आंसर देखिए, अगर आप इसका आंसर मैनुअली देते हैं इफ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पुलिस, तो इट्स yes, because there was no direction, unknown person, you cannot start investigation. CRPC कहता है it's not mandatory to have FIR to start the investigation, right? So आप एक एग्जाम्पल देखिए, डेड बॉडी फाउंड, आपने एग्जामिनेशन किया, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, नो इन्फॉर्मेंट वॉज फाउंड, सो प्रोसीडिंग स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेंट. अब यहाँ पर क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट होगी फिर FIR फाइल्ड हुई. सो स्टेटमेंट नोट यूज्ड एज कॉरोबोरेशन, बिकॉज यहाँ पर वो 162 को हिट करेगा. 162 क्या कहता है कि पहले FIR हो फिर ही इन्वेस्टिगेशन हो. Therefore, essentially have FIR first and the police officer might file as an informant. Not lose a vital piece of corroborating evidence. वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ इसलिए स्टार्ट कर देते हैं जैसे डेड बॉडी मिली कि कोई एविडेंस ना छूट जाए. अदरवाइज FIR हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आनी चाहिए. द CRPC डजंट मैंडेट, CRPC इसको मैंडेटरी नहीं कहता है कि लॉजिंग ऑफ FIR फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन. रादर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो सकती है फर्स्ट, एंड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन
फिर आप FIR कर सकते हैं, बट सच FIR विल हिट दिस सेक्शन 162 ऑफ CRPC. सो इफ यू सी प्रैक्टिकली, अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे, पुलिस ऑफिसर विल ऑलवेज इंसिस्ट अपॉन लॉजिंग ऑफ FIR फर्स्ट एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग. बाय डूइंग दिस दे विल हैव अ कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट होता है अपॉन विच इन्वेस्टिगेशन विल बी स्टार्टेड एंड दे कैन बी टेकन इट टू राइट डायरेक्शन. एंड सेकेंडली वो FIR जो पहले बना लेंगे, इट विल बी अ वाइटल पीस ऑफ corroborative एविडेंस दैट इज वाइटल एंड दैट vitality is preserved. ओके, अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज जीरो नंबर FIR. जीरो नंबर FIR क्या होती है? देखिए, व्हेन द FIR इज लॉज्ड इन द रॉन्ग पुलिस स्टेशन, ओके, ऑफेंस कमिटेड समवेयर एल्स बट नो एट अदर वेयर प्लेस. उसको आपने क्या किया, ऑफेंस कहीं और होता है, बाई चांस ऑफेंस होता है एट प्लेस ए, कोई एक प्लेस है, और आप उसकी FIR किसी दूसरे प्लेस के पुलिस स्टेशन पर कर देते हो, then one can take FIR and since not in the same jurisdiction so it is transferred to the respective police station. इंसिडेंट यहाँ हुआ था तो बाई चांस B प्लेस पर FIR हुई है, इस FIR को इस A स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड देयर इट इज नंबर्ड, वहां पर इसको नंबर किया जाएगा. द वन विच इज नॉट नंबर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड इट इज कॉल्ड जीरो FIR. क्योंकि हर बाई चांस इस प्लेस पे जो भी ऑफेंस होते हैं और उनकी FIR होती है, उनको नंबरिंग दी जाती है, बट यहाँ पर इस FIR को नंबर नहीं दिया गया बिकॉज इट इज टू बी ट्रांसफर्ड. इसको ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए इसका नंबर होता है जीरो. दैट्स वाई दोज FIR आर कॉल्ड जीरो FIR विच आर नॉट मेड एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस. ओके, जो रॉन्ग पुलिस स्टेशन में लिखी जाए वो हमारी जीरो FIRs होती हैं, राइट बच्चे. एंड इफ अर्जेंट द इन्वेस्टिगेशन कैन कमेंस, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक FIR साइटिंग लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. ये पुलिस ऑफिसर्स कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, यहाँ FIR नहीं लिखी जा सकती. नो, दे कैन नॉट डू सो, दे हैव टू राइट, आफ्टर देन दे कैन ट्रांसफर इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका FIR से रिलेटेड होता है बच्चे, दैट इज व्हाट इज एंटी टाइम्ड और इवेंट FIR. ओके, एंटी टाइम्ड FIR और इवेंट FIR. देखिए, FIR विच इज फाइल्ड बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, द क्राइम इज सपोज टू बी कमीशनड, मतलब क्राइम अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, commissioned later. Court can presume adverse opinion against the police officer if not registered. If informant appears as the witness, his testimony would be doubtful. So ऐसे anti timed FIR और event FIR वो होती हैं जो before the commission of offense सबमिट करवा दी जाती हैं. अभी ऑफेंस होगा, ये उससे पहले ही कर दी गई हैं. सो इफ द पुलिस ऑफिसर रोट रॉन्ग टाइमिंग्स, it will raise doubts regarding the role of police and informants. So they are sometimes called the false FIR. जब wrong timing लिख दी जाए वो false FIR होती है. But these anti-timed event FIR वो होती हैं जिसमें अभी offense हुआ नहीं है, it is going to be happen. Next question which arises is an FIR a privileged document? क्या FIR एक privileged document होता है? बताइए, इसका आंसर है नो. नो, इट्स नॉट अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, मतलब कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है. FIR इज पब्लिक डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट मीन्स एनीबडी कैन एट एनी टाइम डिमांड फॉर द लुक ऑन दिस नोटिस. कोई भी कभी भी मांग सकता है FIR को एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबडी कैन हैव इट, राइट. हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको FIR को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया. सो इट्स नॉट अ प्रिविलेज्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज FIR अ प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट? क्या एक ये प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट है? अगेन द आंसर इज नो. नो, इट्स नॉट अ प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट. प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट्स मीन्स ऑफ प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. क्या इसको ऑलरेडी हम प्रिज्यूम मान के चलते हैं? क्या इसको हम जेन्युइन मान के चलते हैं? नो. What is recorded is accurate as to what is stated. जो बोला गया है इसमें वही लिखा गया है, जो बोला गया है उसको सही लिखा गया है. yes it's that but it is not presumed to be correct. अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, शायद कुछ इंफॉर्मेशन गलत साबित हो जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए.
That's why it's not a presumed document. After that, the next question is, can a child or a lunatic person can file FIR? क्या child या lunatic person FIR दे सकते हैं? देखिए, इफ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड तो वो नहीं दे सकता. ही कैन ओनली गिव FIR व्हेन ही विल बी ऑफ साउंड माइंड. जब वो ठीक हो जाएगा, साउंड माइंड हो जाएगा, तभी वो FIR देगा. lunatic person, if he is permanently lunatic, no, he cannot give FIR. Okay, the answer is no. But if he is soundly lunatic means mind से sound है अभी, so then yes, he can give FIR. Unsound ही है तो no. Child can become a witness. Child witness बन सकता है if he understands the question and give rational answer. If उसका mind इतना developed है that वो question को fully understand भी कर रहा है, साथ में वो rational answer भी दे सकता है, तब उसको हम witness बना सकते हैं. If he can become a witness, then he can file FIR too, right? So child, father, mother, right? By chance father and mother died, so child can give a statement. और उसकी स्टेटमेंट को हम FIR मान के चलेंगे. व्हेन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट कैन बी अ कम्पिटेंट विटनेस भी हो सकता है वो. पुलिस वुड बी विजिलेंट टू हैव अ मेजर, लेकिन पुलिस ट्राई करेगी कि मेजर ही हो तो बेटर है. इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन दे विल सी कि हु इज द मेजर वन, सो मेजर चाइल्ड का ही स्टेटमेंट लिया जाएगा, राइट. सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू FIR. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो FIR से रिलेटेड आता है, दैट इज can a police officer refuse to record an FIR because it doesn't belongs to his jurisdiction? अभी जो मैंने आपको 0 FIR वाला केस दिखाया, क्या पुलिस स्टेशन कोई भी पुलिस मना कर सकता है अगर उनको ये लगता है कि ये उनकी jurisdiction से बाहर है? So answer is no. This could not prevent the constable from recording information and forward it to the police station having jurisdiction. Okay, आपका एक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनति रमुबू केस है, उसको देखिएगा बच्चे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ एन ओरिजिनल FIR रिप्लेस्ड विद अनदर FIR? पहले एक ओरिजिनल FIR है, फिर उसको दूसरी FIR से चेंज किया गया है, तो व्हाट इट हैपन? इट विल क्रिएट अ सस्पिशन इन कोर्ट. कोर्ट में डाउट तो देखिए जरूर होगा, डाउटफुल सिचुएशन जरूर अराइज होती है इससे, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इज इट अ ड्यूटी टू रजिस्टर एन FIR या शुड सच ऑफिसर वेट फॉर एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन? बताइए. आंसर इज पुलिस ऑफिसर इज लीगली बाउंड टू रजिस्टर द FIR. ये तो बिल्कुल जरूरी है कि उनको FIR को रजिस्टर करना ही पड़ेगा. एंड इफ एलिगेशंस मेड आर इन लाइन विद सेक्शन 154 से रिलेटेड है, ही कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू cognizable case. और cognizable case में there is no need to take the prior permission of magistrate or wait for his order. If the offense is very serious, police officer can start the investigation. Okay, is delay in lodging FIR accepted? अगर FIR में delay हो रहा है तो क्या वो delay accepted है, acceptable है? Answer is delay in reporting the sexual offenses is okay. अगर sexual offenses हैं, as they are sensitive decisions to be made by the victim. Otherwise delay पे भी doubt होता ही है. आप जितना delay करेंगे doubtful situation उतनी ही arise होती जाएगी, right? So next is, can a telephone message be considered as FIR? अभी हमने just किया था, तो answer is no. Anyone can report the cognizable offense orally or in writing to police officer, right? mere टेलीफोन मैसेज अनलेस इट इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग, अगर आप उसको नहीं लिखोगे, साइन नहीं करोगे, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज FIR. वो FIR नहीं मानी जाएगी. ओके, इज FIR इज इन इटसेल्फ एन एविडेंस? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है FIR की? सो आंसर इज नो. It is the totality of evidence which matters in deciding the case, and FIR is only a piece of such evidence. ये total evidence नहीं है, it's just a piece, right? Next question which arises is not mentioning the accused name in FIR okay? The name of some accused are not mentioned in FIR is a, ये हमारा depend करता है what's the circumstances are, okay? Which is the prosecution is to explain करना पड़ता है prosecution को कि name किन conditions पर नहीं आया है बाहर.
राइट. कैन इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन डायरी कंसीडर्ड एज FIR? जो डायरी में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, क्या उसको आप FIR बोल सकते हैं? आंसर इज येस. द इंफॉर्मेशन जस्ट एंटर्ड इन द स्टेशन हाउस डायरी, वो भी आपकी FIR की कैटेगरी में आती है. राइट बच्चे, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ FIR. राइट, आई होप अब आपको FIR का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है. मैंने जितने डाउटफुल क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आई हैव गिवन यू एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आंसर्स. So keep revising, keep watching this video. If you get any doubt, comment below. Wait for the next video, then we will discuss in it what is delay in lodging the FIR, what is the evidentiary value of FIR, and what if there are multiple FIRs. Right, we will discuss them. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.